everyone. In today's class, we'll be starting with fundamental accounting assumptions, which is a very important topic of chapter 3 of accounts. Now, before beginning the video, there was a problem posed in front of me in which many students complained that they weren't able to sit in front of the computer for 20-30 minutes. So, I've decided to introduce a new series, that is the short series. Every episode of this series would consist of only 10 to 12 minutes and we'll freeze every topic here only in the class. So let's start with today's class where we'll talk about fundamental accounting assumptions. People belonging to different types of backgrounds, people who are seeing an accounts class for the first time, they'll also be able to understand these three concepts. Going concern assumption, consistency assumption, and accrual assumption. Now first of all, you have noticed that the name of the chapter is Fundamental Accounting Assumptions. Now what is accounting? Why do we do accounting? I'll make a separate video which will focus on this topic. Today's focus of the class is what are assumptions? Why do we need assumptions in accounts? हमारे को accounts में assumptions की क्यों जरूरत होती है? क्यों हमारे को बार-बार इस चीज को assume करना पड़ता है? Accounts के अंदर assumptions की बहुत ज़्यादा importance है because assumptions bring a uniformity in assumptions accounts के अंदर एक uniformity लेकर आते हैं. There are various institutes in our country which make accounts, like the ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, ICSI, ICWAI. So there are various institutes which make the accounts. They have posed these assumptions. Why these assumptions have been posed? So as to bring a uniformity in making accounts. Because if there will be no uniformity in making accounts, every accountant will try to use different concepts, different assumptions. Therefore, it is compulsory to follow all the assumptions mentioned in fundamental accounting assumptions. Every company needs to follow all the assumptions listed there. If a company fails to follow any of the above assumptions, it has to make a statement stating the reason why it couldn't follow that assumption. So let's start with the first assumption, that is going concern assumption. The going concern assumption states that the business will go on for a foreseeable time. Now what do I mean by foreseeable time? हर बिजनेसमैन जब किसी भी बिजनेस को शुरू करता है उसके दिमाग में एक चीज क्लियर होती है कि उसे इस बिजनेस को कंटिन्यू रखना है. कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करते हुए ये बात नहीं सोचता कि वो आज या कल इस बिजनेस को बंद कर दे. वो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज क्लियर रखता है कि अगर फर्स्ट या सेकेंड ईयर में if he has to bear some of the losses, the third year would be a break even year and after the fourth year his sales will go rising. उसकी सेल्स जो है वो बढ़ती जाएंगी और जब उसकी सेल्स बढ़ेंगी तो उसको प्रॉफिट होगा. तो हर बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करते हुए चीज सोचता है कि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेगा फॉर अ फोर्सिएबल टाइम. बहुत टाइम तक उसे कंटिन्यू करेगा, जल्दी बंद करने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं. तो कुछ कीवर्ड्स इसके अंदर जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं फोर्सिएबल, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिएबल टाइम, फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड देयर इज नो इंटेंशन. बिजनेसमैन की कोई इंटेंशन नहीं है टू शट डाउन द बिजनेस. अब इस assumption की वजह से इफेक्ट क्या पड़ा, इसके दो एग्जांपल समझते हैं. गोइंग कंसर्न assumption की वजह से अकाउंट्स के अंदर हमारे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को सेपरेटली शो करना पड़ता है. बेटा ऐसा क्यों होता है? इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट पीछे लॉजिक है. पहली बात, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो भी हम लोग खर्चा करते हैं. Whatever expense I do is known as expenditure. This expenditure is divided into two parts, revenue expenditure and capital expenditure. Now what is revenue expenditure? What is capital expenditure? Revenue expenditure is that expenditure which is done on daily use items. ऐसी चीजें जो आपको रोज चाहिए उस पर जब आप खर्चा करते हो ना, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. अगर मैं एक हाउस होल्ड का एग्जांपल लेता हूँ, एक हाउस होल्ड के अंदर रोज आपको राशन लाना पड़ता है, रोज आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क लाना पड़ता है, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आप कार कभी कभी खरीदते हो, वंस इन अ वाइल, कार, मशीनरी, बिल्डिंग, गोल्ड, ये आप वंस इन अ वाइल खरीदते हो, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. अगर मैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज परचेजिंग ऑफ अ स्टेशनरी.
This marker for me is a revenue expenditure because I use it daily. And if I go and buy a car, that is capital expenditure for me. तो आपको एक बात क्लियर हो रही होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपने रोज खरीदना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने वंस इन अ व्हाइल खरीदना है, इन दोनों को सेपरेट करना क्यों जरूरी है? इस गोइंग कंसर्न असम्पशन की वजह से, क्योंकि ये कहता है कि बिजनेस जो है वो इनडेफिनाइट टाइम तक चलेगा, इसीलिए हम डिवाइड करते हैं खर्चों को। अगर पहले ही ये असम्पशन ना होती कि बिजनेस स्टार्टिंग में ही बंद कर देंगे तो हमारे को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी रेवेन्यू और कैपिटल को। So this distinction of revenue and capital expenditure is done. Why is it done? It is done only because of going concern assumption. Now let's come on to the consistency assumption. According to consistency assumption, it is stated that one accounting principle or one accounting method, once adopted, should go on consistently. आपको उसको कंसिस्टेंटली यूज करना है, ये हमारा कंसिस्टेंसी असम्पशन है। बेटा क्या मतलब है इस बात का, ध्यान से देखो। कंसिस्टेंसी असम्पशन में कहते हैं एक बार आप जो मेथड चूज कर लेते हो ना, उस मेथड को फिर कंसिस्टेंटली यूज करो। ये मतलब नहीं है कि आपने अगर एक बार एक मेथड चूज कर लिया, आप सेकेंड मेथड नहीं चूज कर सकते। यू कैन गो टू द सेकेंड मेथड ऑल्सो, लेकिन एक बार जिस मेथड को आप फाइनलाइज करते हो ना, उसे फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक साल में हम एक मेथड को फॉलो कर रहे हैं, सेकेंड ईयर किसी और मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन होता है वियर एंड टियर एक्सपेंस। What is a wear and tear expense? आप शोरूम पे जाओ, शोरूम से आप एक कार खरीदो, शोरूम से कार खरीदने के बाद आप उस कार को घर तक चलाकर लेकर आओगे ना, उसी के अंदर उस कार की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप उस कार को यूज कर रहे हैं। कार को यूज करने की वजह से जो उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, वो होता है हमारा डेप्रीसिएशन। अब इस डेप्रीसिएशन को लगाने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये मेथड्स क्या होते हैं? ये बहुत आगे जाकर अकाउंट्स के अंदर एक चैप्टर स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे डेडिकेटेड है, तो हम वहां जाकर इसे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड्स हैं। या तो आप स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड को यूज करो या आप रिटन डाउन वैल्यू को मेथड को यूज करो। एक बार आप जिस मेथड को चूज कर लेते हो, उसको आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। The method you have once chosen should be applied consistently. ये कहता है हमारा consistency assumption। तो मैंने दो assumptions की बात करी, going concern assumption and consistency assumption। going concern assumption states कि business foreseeable time तक चलता रहेगा, और इसी की वजह से हम लोग expenditure को दो parts में divide भी करते हैं, revenue expenditure and capital expenditure। सेकेंड हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी असम्पशन। एक बार जिस अकाउंटिंग मेथड को आप चूज कर लेते हो, यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेकिन वंस आप इस चीज को फाइनलाइज कर लेते हो, उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। और कंसिस्टेंटली अप्लाई करने से फायदा क्या होगा? आप कंपैरिजन कर पाओगे। कंपैरिजन का मतलब क्या है? मान लो मैंने एक साल 1 year आई हैव यूज्ड द एसएलएम मेथड, द सेकंड ईयर आई यूज्ड डब्ल्यूडीवी मेथड। व्हेन आई यूज्ड two different methods in 2 different years, I am not able to compare the results. उन दोनों के रिजल्ट्स को मैं आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। इसीलिए जरूरी है कि आप किसी एक मेथड को फाइनलाइज करो, दैट यू फाइनलाइज ए मेथड एंड यू स्टिक विद, आप उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करते जाओ। थर्ड हमारे पास आता है एक्रूवल असम्पशन। क्या मतलब होता है एक्रूवल असम्पशन का? एक्रूवल असम्पशन कहता है सेल मस्ट बी रिकॉर्डेड when it is realized, whether cash is received is immaterial। ध्यान से आप लाइंस को समझो। Accrual assumption states that sale should be recognized. Sale should be recognized when it is realized, whether cash is received or not is immaterial।
वो क्या होता है हमारे लिए, वो हमारे लिए इममटीरियल होता है। क्या मतलब होता है इस लाइन का, कह रहे हैं कि आपको अपने बिजनेस के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर सेल को तभी रिकॉर्ड कर लेना है जब आप सामान किसी को देते हैं। आपको उससे कैश मिला या नहीं मिला इसके बारे में हमारे को नहीं सोचना, ये कहता है एक्चुअल एसेंशियल। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं एक कंपनी है REM लिमिटेड। REM नाम की लिमिटेड जो है वो कुछ गुड्स को सेल करती है, गुड्स को सेल करती है 1 फरवरी 2020। जिसको वो सामान बेचती है, मान लो मिस्टर एक्स को वो सामान बेचती है। मिस्टर एक्स कहते हैं कि मैं पेमेंट करूंगा 1 मार्च को। तो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो मैंने गुड्स की सेल करी है, जो REM लिमिटेड ने गुड्स की सेल करी है, उसे कब रिकॉर्ड करें, 1 फरवरी या 1 मार्च? उसे हम 1 फरवरी को ही रिकॉर्ड कर लेंगे, बिकॉज चाहे आपको कैश मिले या कैश ना मिले, वो आपके लिए इममटीरियल। इट इज इममटीरियल वेदर यू रिसीव कैश और नॉट। जिस दिन सेल होती है उसी दिन हमारे को रिकॉर्ड करना। ऐसे ही मिस्टर एक्स जो इस सामान को खरीद रहे हैं, इस सामान को परचेज कर रहे हैं, उन्हें कब इसे रिकॉर्ड करना है, उनको भी इसको 1 फरवरी को ही रिकॉर्ड कर लेना है। उन्हें भी इसको 1 फरवरी को ही एक्सपेंस बना लेना है। कब वो कैश पे कर रहे हैं, इस इममटीरियल हमारे को उसके बारे में नहीं सोचना। So in today's class we have studied 3 assumptions: going concern, consistency and accrual. Going concern assumption: business once started will go on for a foreseeable time. The businessman has no intention to shut down the business. That is why we need to divide the expenditure into revenue expenditure and capital expenditure. Consistency assumption: accounting method once adopted, we should stick to it. We should follow it consistently as it helps in comparison. And we have taken the example of depreciation as in the case of SLM and WTB. And third is accrual assumption. Accrual assumption states sale should be recognized. आपकी सेल तब रिकॉग्नाइज होगी जब अपना सामान बेचोगे, आपको कैश रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारे को इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसे ही आप कोई एक्सपेंस करते हो, आप कोई खर्चा करते हो, आप उसी दिन उस खर्चे को रिकॉर्ड करोगे, आपने उसके लिए कैश पे करा या नहीं पे करा, हमारे को इसके बारे में नहीं सोचेंगे। So this was a short and a crisp class where we studied the 3 accounting main assumptions. In between these, this one is the most important. So I'll see you next week with a new topic. Thanks.